Kunal ma'am, all my dear colleagues and fellow students. If you'll see in the entire country, Northerns are a highly attached fraternity. If you go in any field of life, you will see Northerns are there. That may be the field of UPS aspirants, bureaucrats in the country, teachers, doctors, engineers, nevertheless, a monk. Dear students, today we have such an eminent and energetic personality in front of us. He is Sri Jagannath Yatra Das, and he is a proud member of ISKCON community. You might have heard about Krishna consciousness. Have you? Actually? Yes, sir. Dear students, we know everything, almost everything. Till today, science could reach till the answers of number of questions. We know the distance between the Earth and the Sun. We know their measurements, but if we'll try to understand about ourselves, what is the reason behind our birth? What is the ultimate cause up to which we are supposed to be reached? All these questions are unanswered. Now, dear students, for such answers, physical teachers cannot help you. But to go towards the people who are expert in this field. He is a proud student of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Jalgaon. Please welcome him. When we have guests, we welcome with bouquets and all. It is not good to offer bouquet to such home. Please once again have a huge round of applause for him. Because the people who have already deserted all these physical things, and again you are offering him bouquet, what is use of this? So claps are the best source of welcome for him. No, please. And these people are not there to receive something, they are always there to give us something. By his personality, number of times we feel that the people with a saffron colored dress, they don't have scientific knowledge, they are just blind followers, but nothing like this. Dear students, he is the topper of Jalgaon district in 1998 for class 10. इसके लिए फिर से तालियां बजाएं। In entire Nashik division in 2000, he was the second topper of science faculty, science stream. He has completed his BTech in mechanical engineering from Vijay TI College, Mumbai. Very importantly, he is a lecturer by heart. And almost 8 years he did lecturership. And since last 10 years, he is full-time attached and devoted. He sacrificed his life for ISKCON. Please welcome him with energy and zeal. Please, sir. विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। पहले मैंने माइक को मुक्त किया, कहाँ से? हाँ, क्योंकि हमें मुक्त जीवन की आदत है नवोदय से। हम 30 साल पहले जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल में एडमिशन लिए थे। कौन सी क्लास में?
छठी में लेते एडमिशन होगा नहीं। तो वहाँ जो गेट लिखा था, नवोदय विद्यालय का गेट सब जगह होता है, गेट पे लिखा होता है। तो वहाँ लिखा था कम टू लर्न गो टू सर्व। तो उन शब्दों ने हमें इतना प्रभावित किया कि आजीवन हमें एक लक्ष्य मिल गया, एक मिशन मिल गया। ज्ञान लेना है, कुछ अच्छा सीखना है। बैठ जाऊंगा तो फिर मुझे इतना उत्साह नहीं आएगा। तो इतना प्रभावित किया उन शब्दों ने कि आजीवन हमें एक मिशन मिल गया, जीवन जीने की एक दिशा मिल गई कि जीना है सेवा के लिए, गो टू सर्व। सेवा ये सबसे बड़ा भाव है। भाव समझते हैं? एक होता है बाजार भाव, वो पता है, एक होता है भक्ति भाव। तो मूड सबसे बड़ा भाव सेवा का होता है। सेवा की भावना से ही अपना जीवन महान बनता है। सबसे पहले मैं अपने जो प्राचार्य हैं आज के, मतलब जो अपने टीचर हैं, श्री योगेश सुरवाड़े सर, जो मेरे सीनियर हैं नवोदय विद्यालय भुसावल के, 4 साल आगे थे मुझसे, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय पड़वे, तालुका राजापुर, जिला रत्नागिरी में आश्रय दिया और आप सबके बीच में सेवा का मौका दिया है। तो उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें अवसर दिया है, आयोजन किया है कि बच्चों से, जो मैं अपना मानता हूँ सबको, उनसे कुछ संवाद का एक मौका दिया है। बच्चों, आज दुनिया में वाद बहुत है, वाद विवाद, लेकिन संवाद बहुत कम है। संवाद, एक अच्छी डिस्कशन, एक अच्छा चर्चा बहुत कम है। तो जब हमें ये भावना होगी कुछ सेवा देनी है, कुछ अच्छा बनना है, तो आपके मन को हमेशा उत्साह होगा। केवल एग्ज़ाम का सोचोगे, केवल एग्ज़ाम का सोचोगे, मार्क्स का सोचोगे, इतने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, 99 मार्क्स चाहिए, 95 मार्क्स चाहिए, वो केवल अंक हैं, वो केवल कागज़ पे अंक हैं, उनसे अपना व्यक्तिमत्व नहीं बनता और उन अंकों में अपने जीवन का सुख समाधान नहीं होता। ये हमने अनुभव किया। हम खुद अपने बैच के टॉपर्स थे या अपने क्लास के टॉपर्स थे, बोर्ड डिवीज़न के टॉपर्स थे, कॉलेज के टॉपर्स थे, लेकिन हमें अनुभव आया कि इन अंकों में सुख नहीं होता, इन अंकों में कोई समाधान नहीं होता जब तक हमें कुछ ज्ञान, अच्छा ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान भी क्यों? केवल दिखाने के लिए नहीं, कुछ उसका उपयोग लेने के लिए, कुछ उसका जीवन समाज के लिए योगदान देने के लिए भी भावना नहीं होगी, वो ज्ञान भी कुछ काम का नहीं होता है, या वो ज्ञान भी हमें कोई मदद नहीं देता है। हमने अनुभव किया है। इसलिए हम बीटेक के बाद जब ऑप्शन थी कि जॉब कौन सा लेना है, नवोदय से तो हमें आईएएस बनने के सपने थे, क्योंकि अपनी विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी जो होती वीएमसी, उसकी चेयरमैन आईएएस होते हैं, कलेक्टर होते हैं, और अपने स्कूल की फंक्शंस में आते जाते हैं गेस्ट आईएएस। तो उनको देख देख के बच्चों को सपने होते हैं कि हमें कुछ ऐसा बड़ा बनना है। तो हमें भी सपना था आईएएस बनना है, कि बड़ा पद होगा तो बड़ा सेवा देंगे, ऐसा विचार था। लेकिन जब बीटेक के समय हमने भगवत गीता को सुना, कुछ पढ़ा, कॉलेज के दिनों में मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में गीता पढ़ी हमने, तो थोड़ा जीवन का ज्ञान हुआ। जीवन का ज्ञान मतलब अपना ज्ञान। आज की किताबों में, सिलेबस में भौतिक विषय बहुत है, इसे ये कहते हैं, उसे वो कहते हैं, ये मशीन कैसे बनता है, ये सिस्टम कैसी चलती है, लेकिन अपना जीवन क्यों है, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं और हमें कहाँ जाना है। क्योंकि जाना तो है सबको। लाइफ इज जर्नी, लाइफ इज जर्नी। वी शुड नो वेयर फ्रॉम वी हैव बिगन एंड वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स। हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता तो चाहिए। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं मैं कहाँ से आया, कितने समय के लिए हूँ और आगे कहाँ जाऊँगा, उससे क्या समाधान होगा जीवन में? होगा क्या? जिसको अपने जीवन का ये पता नहीं कि मैं जो दुनिया में आया हूँ कुछ समय के लिए, मैं कहाँ से आया हूँ, पहले से कोई नहीं दुनिया में, और फिर मुझे एक दिन जाना भी है, मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ जाऊँ मैं,
वो भी पता नहीं है, तो हमें अपने जीवन में सही दिशा कैसे मिल सकती है? दिशाएं अनंत है, दिशाएं अनंत है, लेकिन सही दिशा एक ही होती है जो हमें हम जहाँ से आए हैं वहाँ ले जाए। क्योंकि अपना सुख, अपनी व्यवस्था, अपनी सुविधा, अपना समाधान वहाँ होता है जहाँ अपना नित्य स्थान है, नित्य स्थान, हमेशा का स्थान। हम बहुत घूमते हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, वो जगह घूम ना, यात्रा करते हैं, लेकिन यदि अपने गांव, अपने घर वापस नहीं आएंगे तो फिर वो सुख नहीं मिलता है। जैसे आप स्कूल में आए हो, कहाँ से आए हो स्कूल में? आप अपने गांव से आए हो, अपने अपने घर से आए हो। जब छुट्टी लगती है, यदि आपको याद नहीं होगा मैं कहाँ से आया था, कौन से गांव से हूँ मेरा नाम क्या है, मेरे पिता कौन है, माता कौन है, तो आपको कितनी बड़ी समस्या होगी कि आप कहाँ लेफ्ट जाऊँ या राइट जाऊँ, समझ में नहीं आएगा। ऐसे अपना हो गया है जीवन में, दुनिया में तो आए हैं, लेकिन अभी हमें याद नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं, अपना मूल स्थान कौन सा है। कि दुनिया में ये बॉडी जो मिली हमें, ये बॉडी भी बदलती रहती है, बदलती रहती बॉडी। आपको अनुभव है, बचपन का बॉडी अलग था, माँ की जो हाथों में बॉडी था वो अलग था, आज का जो बॉडी है वो अलग है। बॉडी है चेंज इन साइज, इन शेप, इन फॉर्म, बॉडी है चेंज। टर्न बदलता है अपना। मन का तो क्या कहें, वो तो पल पल में बदलता है। मन इतना चंचल है, सुबह का मन अलग होता है, दोपहर का मन अलग होता है, शाम का मन अलग होता है। मन तो बदलता रहता है। बुद्धि भी बदलती रहती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है ना, ऐसा होता है। दिमाग नहीं चलता, कभी कभी चलता है बहुत अच्छा। और अपना अहंकार वो भी बदलता रहता है, मतलब अपनी पहचान। अहंकार क्या होता है बच्चों? अहंकार अपनी पहचान होती है, अपनी खुद की जो आइडेंटिटी है, जो हम समझते हैं, उसे बोलते हैं अहंकार। अहंकार दो होते हैं, एक होता है रियल ईगो, जो हम हैं वो समझना, वो सच्चा अहंकार, स्वाभिमान। एक जो हम नहीं हैं वो समझना, वो होता है मिथ्या अभिमान, झूठा अभिमान, झूठा अहंकार। तो हमें चाहिए अहंकार, चाहिए कौन सा? हम जो है वो समझना और उस योग्यता के अनुसार जीवन जीना। तो और अंत में इसके आगे एक आत्मा होती है। हम सबके शरीर में एक आत्मा होती है जिसे कहते हैं जीवात्मा। शब्दों पे ध्यान दीजिए। जीव है तो जीवन है, जीव है तो जीवन है। जहाँ जिसमें जीव होता है उसे क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें जीव है उसको कहते हैं सजीव। जिसमें जीव नहीं होता उसे क्या कहते हैं? निर्जीव, नॉन लिविंग। लिविंग, नॉन लिविंग। हम कौन है, लिविंग या नॉन लिविंग? हाँ, बॉडी इज नॉन लिविंग। ध्यान दीजिए। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी लिविंग है नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग। गाड़ी में वो ड्राइवर बैठता है, ड्राइवर, पैसेंजर, वो कौन होते हैं? वो जब बैठते तो गाड़ी चलती है। वैसे ही बॉडी जो है अपनी, ये अपनी गाड़ी है। बॉडी अपनी क्या है? गाड़ी है। जब तक इस गाड़ी में, इस बॉडी में हम बैठे हैं, हम मतलब कौन? मन नहीं, हम मतलब बुद्धि नहीं, हम मतलब अपना अहंकार नहीं, हम मतलब कौन? जीवात्मा। बोलो, हम मतलब कौन है? जीव। बोलते ना इसका जीव चला गया, ऐसा बोलते ना, इसका याचा जीव निघून गेला, आजोबांचा जीव गेला, किंवा आमची पंजी आम्हाला सोडून गेली। बॉडी समोर असते, बॉडी सामने होती है, हम बोलते हैं दादी हमें छोड़ के चली गई। ध्यान दीजिए कि बॉडी सामने है, दादी को उठाओ, नहीं ये दादी नहीं है, ये दादी की डेड बॉडी है। दादी चली गई, कहाँ चली गई? बोल के नहीं गई, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँगी। देखिए, जीवन के विषय में थोड़ा सोचेंगे तो हमें कुछ पता ही नहीं है कि वास्तविक हम कौन हैं, क्यों आए हैं। थोड़ा हम यदि आत्मज्ञान लेंगे तो आत्मा विश्वास आएगा, आत्म संयम आएगा, आत्म सुख भी आएगा, आत्म शांति भी आएगी और आत्मा समाधान भी आएगा। किससे आएगा ये सब कुछ? आत्मा ज्ञान से।
आत्मविश्वास का मतलब होता है स्वयं पर विश्वास। पता है आपको? स्वयं पर विश्वास, आत्मविश्वास। वैसे ही आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने स्वयं का ज्ञान। एक होता है बॉडी का ज्ञान, होना चाहिए कि बॉडी का उपयोग कैसे लेना है, बॉडी को कैसे संभालना है। ये होता है मन का ज्ञान, मनोविज्ञान, वो भी पता होना चाहिए मन को कैसे काबू में रखना है, कंट्रोल करना है, संयम, मन की इच्छाओं पर संयम बनाना है, मन को ऐसे खुला छोड़ना नहीं है पागल घोड़े की तरह दौड़ने के लिए। वो दौड़ता है लेकिन हमें लगाम से ना ब्रेक लगाना चाहिए, उसको संयमित करना चाहिए। मन बड़ी शक्ति है, उसका उपयोग अच्छे से लेना आना चाहिए। बुद्धि भी बड़ी शक्ति है, उसका भी उपयोग कैसे लेना है, सही दिशा में बुद्धि कैसे लगानी है, वो भी हमें सोचना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम जो है जो कभी बदलता नहीं, इस बॉडी में तन मतलब बॉडी बदलती है समय के साथ, जन्म होता है फिर उसकी चेंजेस होती है, बॉयहुड, यूथहुड, देन ना ओल्ड एज एंड देन डेथ। ये बॉडी की फेजेस है, चेंजेस है। मन तो बदलता जाता है, अपना बुद्धि बदलता जाता है, अहंकार अपना स्टेटस बदलता जाता है, पहचान। लेकिन हम नहीं बदलते, ये सब बदलते हुए हम जो व्यक्ति है, जो भगवान का अंश है, हम जो बोलते हैं तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। तुम सुना है कभी? आप कभी गाए हो? पीछे बोलिए, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, बोलिए, हाथ जोड़िए सब लोग। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। आपकी आवाज़ बहुत कम है, आपको माता पिता नहीं चाहिए? हम सबके माता पिता भगवान हैं, जो बोलते दुनिया के माता पिता भगवान हैं, परमात्मा हैं, और हम सबके साथ है, हृदय में है, परमात्मा के रूप में। तो उनके लिए गाना है और एक आवाज़ में गाना है, ठीक है? जोर से गाना है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जिसके बंधु, जिसके सखा, जिसका साथी, जिसका सहारा, जिसकी माता, जिसका पिता भगवान होंगे, उसे कोई चिंता की बात होगी? जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों के केवल निर्माता नहीं है, संभालने वाले भी है, उसको उसके पालक भी है, और हम सबके है ना सबसे प्रिय भी है, भगवान सबसे प्रिय है। तो बच्चों, यदि हमें संबंध ज्ञान होगा, संबंध ज्ञान कि अपना संबंध बॉडी से है, इस बॉडी से अपना संबंध है लेकिन थोड़े समय का है, इस स्कूल से अपना संबंध है ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल का, मतलब बीच बीच में आ सकते हो लेकिन रहने के लिए 7 साल ही है ज़्यादा से ज़्यादा, सीखने के लिए। दुनिया से अपना संबंध है थोड़े दिन का, लेकिन अपना हमेशा का संबंध, नित्य संबंध किसी के साथ तो होगा, वो भगवान है। बच्चों, जब अंतिम 2 मिनट बोलता हूँ, जब हमें ज्ञान होगा कि हम कौन हैं, प्रश्न पढ़ता है ना कभी? आपको पढ़ा है कभी प्रश्न? दुनिया में क्यों आया? केवल खाने के लिए, चॉकलेट्स या मैगी? मैं दुनिया में क्यों आया? चाय पीने के लिए या बस मोबाइल खेलने के लिए? आप तो नहीं खेलते मोबाइल, लेकिन समाज में ऐसे बच्चे हो गए अभी, मतलब बच्चे ऐसे हो गए हैं कि बिना मोबाइल के ना खाते, ना पीते, ना सोते, ना कहीं कुछ खेलते हैं, बिना मोबाइल के। ऐसी आदत हमें नहीं लगानी है। तो ऐसा समाज हो गया है, जीवन का कोई ज्ञान ही नहीं, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। बच्चों में पढ़ना है,
हमें ज्ञान लेना है, अच्छा बनना है, अच्छा खेलना है, अच्छा कुछ ना पाना है। लेकिन क्यों पाना है वो भी तो पता चाहिए। जब ये विचार होगा कि हमें सेवा का विचार, अच्छा बनेंगे, कुछ सेवा देंगे, दूसरों के काम आएंगे, तो आपको इतना समाधान मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, इतना उत्साह आएगा। आप कंपटीशन में भाग लोगे, लेकिन आपको चिंता नहीं होगी कि मुझे अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि अवार्ड में, प्राइज में, मेडल में सुख नहीं होता बच्चों। सुख होता है हम किस भावना में उसमें भाग लेते हैं, आनंद लेना चाहिए उसका। एग्ज़ाम का भी, जब एग्ज़ाम कोई देते, कॉन्टेस्ट देते हैं, टेस्ट देते हैं, अंक जितने भी आने दो। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देता हूँ बस अंतिम बात में, कि हम लोगों का टेस्ट हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, होता ही रहता है हमेशा। और टीचर जो थे, एग्जामिनर, सुपरवाइज़र, वो लगभग 10-15 मिनट के लिए बाहर चले गए थे। पता नहीं क्यों गए थे, वो चले गए थे एग्ज़ाम के समय। तो बच्चों को लगा वाह गोल्डन चांस कि एग्जामिनर मतलब सुपरवाइज़र चले गए बाहर। तो बच्चों को इतना मज़ा आया और सब लोग आगे पीछे यहाँ वहाँ, कुछ लोग तो उठ के यहाँ वहाँ जाके सबका है ना, मतलब जो कुछ आता नहीं होगा वो देखने के लिए यहाँ वहाँ घूम के किसी का है ना पूछ के एग्ज़ाम दिए। मुझे भी मौका था कि मैं भी कुछ है ना किसी का देख के आगे पीछे पूछ के लिखूं, लेकिन मुझे अपनी बुद्धि ने बताया यदि मुझे 100 में से 150 भी अंक आ जाए पेपर में, लेकिन मेरी आत्मा क्या कहेगी कि हमने क्या किया, हमने प्रामाणिकता से पेपर नहीं दिया, हमने चीटिंग किया, खुद को फंसाया। देखो अंकों में सुख नहीं है यदि हम अपनी नीति छोड़ दें, नीति है ना, मॉरल्स, यदि हम नीति छोड़ दें, जो सही तरीका है, जो सही, वो एग्जामिनेशन है, कोई ओपन बुक टेस्ट नहीं है, एग्जामिनेशन है, अपनी परीक्षा है। यदि हमें समझेंगे नहीं कि भाई हमने जो समझा है वो लिखना है, जब हमने समझा नहीं वो क्यों लिखना है। तो बच्चों ये जो नीतिमत्ता होती है, नीति का पालन होता है, वो आपको शक्ति देता है। अंक भले में ना मिले लेकिन आप में अच्छे गुण आएंगे और आपकी प्रतिभा महान होती है। तो मैं इतना ही कहूँगा अंतिम एक वाक्य में कि नवोदय अपना सौभाग्य है। नवोदय विद्यालय क्या है? अपना सौभाग्य है। ये सौभाग्य सभी को नहीं मिलता, जो भाग्यवान होते हैं उनको ही मिलता है। हम सभी भाग्यवान हैं कि हमें भगवान ने नवोदय विद्यालय में मौका दिया है अच्छा बनने के लिए, अपने जीवन को महान बनाने के लिए। आपको अपना जीवन महान बनाना है या नहीं? बहुत अच्छी बात है। हमें व्यक्त होना आना चाहिए, सही जगह पर सही रूप से व्यक्त होना आना चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए, हमें आत्म समाधान चाहिए। वही वास्तविक यश है जीवन का, वही वास्तविक यश है। हम कमाने के लिए लाखों पैसा, लाखों रुपया कमाते थे और कमा भी सकते थे, लेकिन केवल पैसों में सुख नहीं है बच्चों। जीवन का सुख है कुछ देने में। जैसे सर ने कहा, नागेश सर ने, कि मैं यहाँ कुछ देने आया हूँ और मैं 10 साल से स्कूल कॉलेज में जाता हूँ, बच्चों के साथ संवाद होता है कि जो हमने पाया, जो हमने अनुभव लिया, उसका एक जो क्या बोलते हैं वो बांटने की इच्छा है, देने की इच्छा है, क्योंकि इसकी सबको आवश्यकता है। हमें अपने जीवन का संपूर्ण समाधान मिला है, जीवन का संपूर्ण समाधान मिला है। आज हाथ में पैसा हो ना हो, जीवन का संपूर्ण समाधान हमें है। हमें अपना जीवन धन्य लगता है। यही नवोदय विद्यालय की कृपा हुई, देन हुई हमें कि हमें कुछ ऐसा बेसिक फाउंडेशन मिला नवोदय विद्यालय में कि आज हम एक अच्छी सेवा दे पा रहे हैं। जीवन का ज्ञान, जीवन का विज्ञान बच्चों के साथ, समाज के साथ बांट पा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि नहीं बच्चों? जीवन सबसे अनमोल है, जीवन सबसे मूल्यवान है। यदि हम जीवन को समझेंगे, जीवन को सिखाएंगे लोगों को, तो सबका जीवन महान बनेगा। और हम यही चाहते हैं कि सबका जीवन महान बने। जो बोलते ना, हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या है आगे, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन।
सुना नहीं? ये भावना जो है यदि लाओगे आपका जीवन महान बनेगा। बहुत धन्यवाद। वंस अगेन आई थैंक ऑल द टीचर्स, ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। Just you have heard a lesson of life from our dear sir, and already it is informed him that he is junior to me, but still in spirituality, in the knowledge of moral, he is more than anybody here. And he will be staying here for 2 days and will try to uplift your spirituality, your morality. Okay, and he will teach you how to live a right path of life. Right path of life means not to deceive anyone, not to cheat anyone, because if you are doing all these things, you are doing it yourself. ठीक है, अगर आप किसी को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, तो आप उस आदमी को नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को दे रहे हो। ठीक है, एंड दिस शोज हाउ यू आर